Medical professionals on all health-related queries with regard to COVID-19, and our panelists will answer all your queries and clear any doubts that you may have on the subject. Our phone lines are open for an hour from 2 to 3 p.m. and you can call us on these two numbers that are flashing on your screens. You can note them down: 011-233-87031 and 011-2309-7655 to ask all your medical questions on COVID-19. And you can also post your questions on DD News' live Facebook page and in reply to the pinned tweet that you can see on our Twitter handle, which is DD News Live. I'm Munmun Bhattacharya and with me is my colleague Jyotika Grover. थैंक यू मुनमुन। नमस्कार। जैसे कि मुनमुन ने बताया कि आप अपनी जितने भी सवाल है कोविड-19 को लेकर वो हमारे साथ यहाँ पर शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर्स का एक पैनल मौजूद है जो आपके सभी सवालों का जो जवाब है वो देगा। और हमारे साथ हम बता देते हैं कि आज कौन कौन जुड़े हैं। मुनमुन, हमारे साथ डॉक्टर मृदुल कुमार डोगा हैं, प्रोफेसर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से हैं। डॉक्टर डागा, स्वागत है आपका। हमारे साथ डॉक्टर प्रसून चैटर्जी हैं, एडिशनल प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जेरियाट्रिक मेडिसिन एम्स से हैं, स्वागत है आपका डॉक्टर। डॉक्टर पीयूष रंजन है, एडिशनल प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन एम्स से, आपका भी स्वागत है। और डॉक्टर देवाशीष चौधरी हैं, डायरेक्टर प्रोफेसर इन एचओडी न्यूरोलॉजी, जीबी पंत हॉस्पिटल से। डॉक्टर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। Absolutely. In fact, Jyotika, Dr. Daga will be joining us in just a bit, but we have one guest already who's joined us virtually, Dr. Chatterjee, and also two guests are here with us in the studio, Dr. Piyush Ranjan and Dr. Devashish Chaudhary. Let me get started with you, Dr. Ranjan, on how do you look at India's recovery rate, because we are currently at 26.59%. In terms of trajectory, how is India doing if you look at the recovery rate? So far as we are doing well. So far the condition is not as bad as it is in some of the Western countries. With the lockdown and the early measures which our government has taken, it has almost been under control, but as lockdown will open, so we do expect a bit tougher time for us. So maybe by the end of June or something, we would be in a position to get the actual situation, how far these measures have actually worked for us. Okay. Absolutely. And Dr. Chaudhary, your thoughts on the kind of mental pressures that health professionals will be going through because they need to wear PPEs, masks, they are working for extended hours and shifts. So what are the kind of mental pressures that the health professionals may be dealing in these testing times, and how should they be coping with it? Yeah. Thank you, Munmun, for inviting me. I think this is a very, very important question because, we have been talking about the patients, we're talking about the general public, but the healthcare workers, and we also have seen initially at least some degree of stigmatization of the healthcare workers. But now I think more and more as the days are going by, we are concerned about the health of the healthcare workers because they are in a tough job. 6 hours with PPE on, with the heat and humidity. Many a times the central ACs are all off. There are no other cooling systems. So they are working in a very pressurized situation. And many of them are actually having some of their anxiety of not acquiring the infection. They are not having regular meals or regular fluids. And many times the psychosocial disorders, like say for example a common disorder, migraine, that is getting precipitated very frequently in them. So in the last fortnight I have had call of at least about 10 or 20 people. They said that either the headaches have increased unbearably and therefore they are having this problem. Also there is a problem of anxiety. So these needs to be taken care of. जी डॉक्टर देवाशीष, जैसे कि आपने कहा कि जिस तरह की ये दिक्कतें सामने आ रही हैं, एक बहुत ही डिस्टर्बिंग खबर थी जो पिछले दिनों जैसे कि अमेरिका से भी आई कि जिस तरह से जो कोविड-19 से जिनकी मौत हो चुकी थी और वो शवदाह में वो बॉडीज पड़ी थी और एक डॉक्टर की वो अपनी 18 घंटे की शिफ्ट करके उसको नींद आई और उसने कुछ देर अपनी शिफ्ट खत्म होने से पहले वही स्ट्रेचर पर सोने की सोची और इन द मीन टाइम जो दूसरा एम्प्लॉय उसकी जगह आया, उन्होंने बिना चेक किए उन्हीं को मतलब अग्नि के हवाले कर दिया। दैट वाज वेरी डिस्टर्बिंग, बहुत ही दुखदाई खबर आई थी और ये साफ तौर पर दर्शाता है मानसिक स्थिति इस वक्त जो कोरोना वॉरियर्स है, खासकर डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स की बात करें जिसके दौरान वो गुजर रहे हैं। जी ऐसा है कि मैं समझता हूं कि सोसाइटी को और हेल्थ प्रोफेशनल को दोनों को ही
they have to come in terms with the disease now. This is not going to go off suddenly. ये बीमारी एकदम से नहीं जाएगी. ये epidemic है, इसका एक कर्व बनेगा, एक पीक आएगा, धीरे धीरे ये प्लेटो होगा और धीरे धीरे ये जाएगा. इसके लिए टाइम लगेगा. तो मानसिक रूप से हम सभी को इसको समझना है और इसके लिए प्रयत्न करना है. ये it's a long war, it's a long battle. Absolutely. It's a long battle is what you are telling us, and there are indications of that, and we'll take that further with Dr. Ranjan. But before that, Dr. Chatterjee, since you are into geriatrics medicine, we are aware that there are several relaxations that have kicked in starting today in green zones and orange zones, but it's been clarified by the government that as far as the elderly are concerned, those above 60 years of age, they need to continue to take extreme care and stay at home. So would you give us a set of guidelines that the elderly should follow even in these times when certain activities have been allowed in certain zones? Yeah, this is very important because once the open air to go, including in cities who are at home, my home, I will say my father. But very clearly, Upper speakers also telling that Corona is still present with all of us, and this will be probably a new normal to think that when to go out, when it is essential to go out, then only you go out. We have discussed this repeatedly. Senior citizen has comparatively poorer immune system. They have a decrease in their overall biological reserve. They are prone to, and as per evidence also we have seen they're prone to have much more mortality as compared to other generation. But having said so, I must say that because we're discussing about stigmatization about for the healthcare professional mistrust and all these things, I must say that this is going to happen a major problem for elderly people also. Previous studies has shown that after any outbreak, any epidemic, any pandemic, seniors can expected, and there are a lot of increase in abuse and violence, especially when finance is a major problem. And 70% of people of this country are below poverty level or just above that. So we have to be very, very careful, and this is the right time when we have to calculate as much information we can at for professional. One way you are celebrating Thali. You are right. Has done a lot of things, but other way, still that people getting our healthcare professional back in your house, back in our house. You cannot stay here. When somebody is coming back after. जी डॉक्टर चैटर्जी जी, हम आपके पास फिर लौटते हैं और डॉक्टर पीयूष आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से बुजुर्गों को लेकर बात की जा रही है, किन किन चीजों का उनको ख्याल रखना चाहिए? हालांकि अभी लॉकडाउन में कुछ ढील दी गई है, उसको देखते हुए आप इसमें क्या ऐड करना चाहेंगे? जी, इसमें जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो देखिए, इसमें दो पहलू है. बुजुर्ग क्यों होते हैं? बुजुर्ग में बेसिकली एक इम्यूनिटी ऐसा मानते हैं कि समय के साथ साथ जो कुछ और बीमारियां जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन और जो नॉर्मल सेनेसेंस जो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया होती है उसकी वजह से इम्यूनिटी कम हो जाती है. तो यहाँ इस बात को शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आज की डेट में जो 40 की उम्र में है, जो 35 की उम्र में, वो अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अच्छा भोजन, अच्छा एक्सरसाइज करते रहे. नंबर 1. नंबर 2, जो चीज इंग्लैंड में जो सबसे ज्यादा जो मुसीबत का समय लेकर के आई, बुजुर्गों को कम से कम टिल द टाइम वी हैव अ वैक्सीन, नंबर 1, और नंबर 2 अ डेफिनेटिव ट्रीटमेंट. तो शॉर्ट ऑफ ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लगे, लेकिन उनको सबसे ज्यादा वो हाउस अरेस्ट या फिर घर में ही एक अलग आइसोलेशन करके रखना होगा. जैसे बच्चे में ये सबसे ज्यादा वो कम से कम ये तकलीफ देखी गई है. जो यंगर्स हैं, जो उनके जो जेरिएट्रिक एज ग्रुप के जो बेटे हैं, जो काम के लिए या हेल्थ केयर वर्कर्स इधर उधर जा रहे हैं घर या अस्पताल में, तो उनके थ्रू ये इन्फेक्शन जाने अनजाने घर में आ रहा है. बिल्कुल. तो उनको अपने आप को इन लोगों से अपनी भावनाओं पर अंकुश लगाते हुए अलग करके रखना होगा उस समय तक, जिस समय तक कि इसका एक डेफिनेटिव इलाज, चाहे वो ड्रग के रूप में हो या फिर टीके के रूप में हो, वैक्सीन के रूप में ना हो, वो हमें ये करना होगा. नंबर 1. नंबर 2, उन्हें अच्छा भोजन करना होगा, रेगुलर भोजन करना होगा, और सबसे ज्यादा अपने आप को आशंका, कोई भी अननेसेसरी एंजाइटी इससे दूर करके रखना होगा. बिल्कुल. और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुरेश हैं बेंगलोर से. जी सुरेश, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल. सुरेश, क्या आप तक हमारी आवाज आ रही है?
Namaskar to everyone, madam. जी बताएं, पूछिए अपना सवाल। For the last 20 days, on the vegetable, fruits and milk, so many questions and answers have been told, they are informed, precautions. But my question is about 2 points. One is when international courier is received by us for the last 3 days, it is kept aside. Could you please repeat your Madam, question? For the last Suresh. 30 days, fruit, vegetable, milk, so many precautions, everything is made clear. But my question is for other 2 points. One is I have received one international courier for the last 3 days I have kept aside. I don't know where it has come through the Indian post, when it was received by Indian authorities, when it is delivered by the abroad. First point, how much precaution I have to take when I should open it. First thing. Second point, abhi now grocery when we are going for purchase, no new packing have already started during the corona. April packings have started, groceries, atta, sugar, biscuits, everything. And then we are going to Bangalore, so many lots of drinking water plants are there, putting the point, we are bringing the water. Yeah. Right, Mr. Suresh, we could get the crux of your question. Perhaps you're worried about the packaging of various things, and we understand there are several FMCG products that are coming to your place in different packets, and you're worried that the infection could well transmit through those packets. So let's take an answer from you on that, Dr. Chaudhary. So the virus ka jo survival rate hai, in the general atmosphere, it is variable. We are not still 100% sure about it, but it generally ranges from about 2 weeks, and that also depends on the temperature. But by and large, if the parcel is coming for long, it is always be wiser to at least clean it and wipe it out with alcohol-based sanitizer and then open it, because you don't know. So that will be a general advice, but chances of getting an infection through those packets are really low. राइट डॉक्टर देवाशीष, एक सवाल आपसे करना चाहूंगी। जिस तरह से डॉक्टर पीयूष रंजन अभी बता रहे थे कि बुजुर्गों को खासकर अपनी भावनाओं को अलग रखकर जो भी लोग घर से बाहर काम करने जा रहे हैं और लौट रहे हैं उनसे बचाव करने की जरूरत है, लेकिन एक यहाँ पर कंसर्न पॉइंट और है, आजकल सबके हाथ में एंड्रॉयड फोन है और सबके पास व्हाट्सएप है, और बहुत से ऐसे व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं जिनको पढ़कर जो बुजुर्ग खासकर वो घबरा जाते हैं, एंग्शियस हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं। तो इस तरह की चीजों पर भी किस तरह से खुद को कंट्रोल किया जा सकता है, खुद को कैसे शांत किया जा सकता है और खुद को कैसे संभाल कर रखा जा सकता है? इफ यू कैन ऐड टू दैट। यस, तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट तो सोशल डिस्टेंसिंग का है ही, लेकिन बुजुर्गों के साथ ये खास प्रॉब्लम है क्योंकि काफी बुजुर्ग अकेले रहते हैं। अगर घर में भी आप जाते हैं, अगर बुजुर्गों के साथ बात ही नहीं करेंगे आप, तो वो लोनली फील करेंगे, वो आइसोलेटेड फील करेंगे। मैं सारा दिन हॉस्पिटल में काम करके जब घर पहुंचता हूं तो मेरी माँ मेरे लिए वेट करती हैं कि कब मेरे से पूछेंगी कि आज हॉस्पिटल में क्या हुआ, क्या दिक्कतें आई, कैसे मरीज को आपने ट्रीट किया। तो मैं अगर टोटली अपने आप को कट ऑफ कर लेता हूं अपने मदर से, तो वो खराब बात है। तो हमें ये समझ के काम करना है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग तो रखना है, घर में अगर संभव हो तो एक दूसरे से थोड़ा दूरी मेंटेन कर रखें, लेकिन कनेक्शन जरूर रहे, या तो फोन में जैसे आपने कहा, या तो फोन के जरिए या डायरेक्टली आप उनसे बात कीजिए, उनको लोनलीनेस में आने मत दीजिए। और जहां तक इंफॉर्मेशन का सवाल है, इंफॉर्मेशन का सवाल में उनको सबको समझना है कि क्रेडिटेबल इंफॉर्मेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत कुछ इंटरनेट में फैल रहा है, बहुत कुछ व्हाट्सएप के जरिए आ रहा है, लेकिन सब सही नहीं है। तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वाला वेबसाइट लीजिए, आरोग्य सेतु का जो बहुत अच्छा ऐप है उसका प्रयोग कीजिए, तो आप सुरक्षित रहेंगे। Dr. Chatterjee, your thoughts on how the elderly can continue to boost their immunity while staying at home? What are the kind of food intake that they should go in for, and what are the kind of exercises that they should do while staying indoors? Yeah, this is very important because they're physically they're not so active as they used to. But we must ensure that they should walk morning, evening inside their home, or if they have courtyard. Even I can suggest that if there is not much crowd in front of your house, you can just go out and walk. And it's not that, see, we should not be so much panicky that I cannot just go out of your home. But it should not be a crowded place. So walking and other form of exercise, resistive exercise are there. So that is must. Exercise, that is first thing. Second thing is you have to be mentally also active.
That is, as my previous speaker mentioned, you should be interacting with your family member wherever they are. Even they can be in abroad, you must interact every day with them. That will give you some amount of stress-free time, some amount of happiness. Do some cognitive stimulation activity. It can be Sudoku, it can be like something like interacting in computer, it can be reading some new books or new language. That is one thing. Then fourth thing is you should be away from infodemics, which is misinformation, which is trickling down, which again my previously mentioned. Regarding food, I will say take small and frequent food instead of large meal at a time. Because as you are not moving so much, there is chance of indigestion and constipation. But you have to take plenty of vegetables which increase your immune system. Take any fruits you want, that will also increase your immune system. Thank you. बिल्कुल। और डॉक्टर चोपड़ा हमारे साथ मुजफ्फरनगर से जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका जी, अपना सवाल कीजिए। मेरा सवाल डॉक्टर प्रसून से है जी। डॉक्टर साहब जरा ये बताइए कि जो डॉक्टर 60 साल से ऊपर हैं और यदि उनको कोई हार्ट डिजीज है या उनको डायबिटीज है तो उनके लिए क्या निर्देश है? क्या उन्हें काम पर या ड्यूटी पर जाना चाहिए या अपने घर में रहना चाहिए? If I have, अगर मुझे करेक्ट सुनाई दिया, आपने ऐसे कहा कि 60 साल के ऊपर के डॉक्टर को ड्यूटी पे जाना चाहिए कि नहीं चाहिए? जी। राइट? अच्छा। Right. If they have other conditions, for instance, if they have conditions like diabetes. डॉक्टर चौबे साहब, मैं आपको बता दूं, 60 साल कोई मैजिक नंबर नहीं है। कोई लोग हैं जो 60 साल में भी 50 साल जैसे रहते हैं। सो योर इम्यून सिस्टम बिल्डिंग इज ए स्टोरी ऑफ योर लाइफ लॉन्ग। अगर आप उतना एक्टिव हो, अगर आप फिजिकली एक्सरसाइज रोज करते हो, इफ यू आर ऑन हेल्दी डाइट, if you have no much morbidity, but of course I listen that you told diabetes itself is a risk factors and it reduces the immune system drastically. So but again, if your diabetes is well controlled for a long time, I will say you are a near normal person. So 60 years is not should not be a contraindication to go out if you are physically healthy, you have not much comorbidity, or these are all under your control. So under medication control basically, so then you can go. But again, as our honorable prime minister is also mentioning, 65 से ऊपर हमें थोड़ा avoid करना चाहिए. But it depends again how you maintain your health. But being a doctor, and if you see the abroad, many people who has retired also came back to serve their nation. So I'll not say don't go, but take proper precaution, and definitely your diabetes should be under control. Yes, Dr. Ranjan, would you like to add something to this? देखिए, इसमें जो आपकी जो ड्यूटी है, जैसा डॉक्टर चटर्जी ने भी बताया, तो वो प्रिकॉशन क्या रखने चाहिए? आप अपने मरीज से जितना संभव हो 1 से लेकर 2 मीटर तक की दूरी रखें, नंबर 1। लेवल 2 पीपीई का प्रयोग करें। लेवल 2 पीपीई में क्या आता है? N95 मास्क, जिसके बारे में आपको बताया जा चुका है। अपने हाथ के ऊपर जहां तक संभव हो दस्ताने पहने, और उसके ऊपर जो गॉगल्स, अगर गॉगल्स नहीं भी संभव हो तो जो विंड शील्ड होता है वो आप पहन करके रखें। जाने से पहले और मतलब मरीज देखने अपने क्लिनिक पर या अस्पताल जाने से पहले जो कपड़े आप पहन करके जाएं, उसे आप खोल करके आप एक शावर ले सकते हैं। और जो मरीज को देखने के बाद आप अपने फ्रीक्वेंटली अपने हाथ को वॉश कर सकते हैं। जैसा कि अलग अलग चैनल में भी बताया गया है कि वो कम से कम ये 20 सेकंड से लेकर के 40-50 सेकंड तक वो वॉश होना चाहिए। प्रेफरेबली अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से होना चाहिए। अगर वो उपलब्ध न भी हो तो भी वो साबुन से हैंड वॉश करना चाहिए। अगर आप लेवल 2 पीपीई का प्रयोग करते हैं तो किसी भी तरह से आपको बहुत ज्यादा डायलेमा में या ऐसी परेशानी में, मन के अंदर में किसी भी आशंका में रहने की जरूरत नहीं है। नंबर 2, जो ऐसे पेशेंट जो कि आपको एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस के साथ आ रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट को आप अपने असिस्टेंट को कह सकते हैं कि वो पहले ही वो हिस्ट्री लेकर के वो पहले ही उस पेशेंट को जो प्रॉपर्ली जो है वो मास्क वगैरह पहना करके आपके सामने रखें। तो इन सभी चीजों का जब तक आप सावधानियों का प्रयोग करते रहेंगे, तब आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। और डॉक्टर्स की अगर बात की जाए तो सही मायने में सच्चे कोरोना वॉरियर्स आप ही हैं। आप ही आगे, जिसको कहते हैं कि सेना को आप ही आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो जाहिर है बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। हमारे साथ हिमांशु जुड़ गए हैं अलीगढ़ से। हिमांशु, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। थैंक यू। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा ये क्वेश्चन था कि जो जैगरी जो होता है, गुड़ जिसे कहते हैं, तो वो तो ओपनली मिलता है मार्केट में, तो उसको डिसैनिटाइज कैसे किया जा सकता है? Would you like to respond to this, Dr. Chaudhary? How can jaggery, or which is called gur in Hindi, be desanitized is the question. नहीं,
तो गुड़ को सैनिटाइज करने का प्रक्रिया तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप अच्छे जगह से गुड़ खरीदते हैं और उसको अच्छी तरह रखते हैं तो गुड़ लेने में कोई एज सच पाबंदी नहीं नजर आती है, लेकिन मेरे को एग्जैक्टली मालूम नहीं है डॉक्टर। सर मेरे ख्याल से आजकल अच्छी जगह से अगर आपने जैसे कहा कि गुड़ खरीदे तो पैक्ड गुड़ आ रहा है, तो आप जाहिर है कि पैकेज अगर गुड़ खरीदेंगे तो वो सीधे तौर पर किसी के हाथ उस पर टच नहीं होंगे, अगर मैं गलत नहीं हूँ। गुड़ क्या वो अगर आप देखें तो वो कोई भी सामान जो कि आप खरीदते हैं, चाहे वो फल हो गया, गुड़ हो गया, या फिर कोई और दूसरी चीजें हो गई, या डबल रोटी या ब्रेड ही हो गया, इसमें जो एक जनरल और जेनरिक जो आपको सलाह ये दी जा सकती है कि अभी जो खुले में जो चीजें बिकती है, जैसे गुड़ अगर खुले में है तो उसे आप लेना फॉर द टाइम बीइंग थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं, और जो खुले में जो चीजें भी बिकती हैं उसको जो मूल तौर पे ढकी हुई चीजें हों उसका आप प्रयोग करें फॉर द टाइम बीइंग। डॉक्टर पीयूष, मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगी। गुड़ का जो जिस तरह से सवाल आया, हम बुजुर्गों की भी बात कर रहे थे, घर में जिस तरह से हम बातचीत करते हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे टोटके भी उनके पास होते हैं दवाइयों को लेकर के। जरा सी खांसी जुकाम होती है तो दादी नानी अपने नुस्खे लेकर जरूर आती हैं, वो बहुत कामयाब भी होते हैं। लेकिन इस स्थिति में जब हम इतनी बड़ी महामारी के साथ लड़ रहे हैं, ऐसी स्थिति में इस तरह के टोटके बहुत से ऐसे छोटे छोटे हैं जो क्या काम करते हैं नहीं करते, इस पर आप रोशनी डालें, क्योंकि बहुत घरों में इस तरह पे प्रेशराइजेशन भी हो जाती है कि नहीं ये सही है, ये करना ही है। मैं ना आपकी बातों को एक एक करके बताता हूं। जी। अभी आपने शुरू में कहा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, बिल्कुल, और प्रामाणिक ज्ञान के जो स्रोत हैं यह समझना बहुत आवश्यक है। तो जैसा कि सर ने भी कहा कि वो आपको किस जगह से ज्ञान लेना है वो आपको सोचना है, और इसके लिए जो प्रामाणिकता के आधार पर जो गवर्नमेंट के वेबसाइट हैं, ऐसे कार्यक्रम में बार बार हम लोग आते हैं, तो आप वहां पर प्रामाणिकता से ये रखें। और दूसरी बात टोटके के लिए, हम सभी अपने जीवन में एग्जामिनेशन देने के लिए जाते हैं, सभी ये जानते हैं जब भी एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो काम हमेशा पढ़ाई आती है, लेकिन फिर भी बड़ों का और भगवान का पैर छू करके जाते हैं। बिल्कुल। तो ठीक उसी प्रकार टोटके अगर आपके घर के बुजुर्गों को संतुष्टि दे रहे हैं तो बस उनके संतुष्टि के लिए उसे आजमा ले, लेकिन उसके भरोसे ना अपना नुकसान करें और ना ही उसके भरोसे जो नॉर्मल और ऑथेंटिक जो आपके लिए जो हेल्थ केयर सिस्टम है, जो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन है, उसकी अवज्ञा या अवहेलना करें। Absolutely. So you're saying that let traditional wisdom complement the modern medicine. तो मैं एक चीज छोटा सा ऐड करना चाहता हूँ। बिल्कुल। टोटके अगर आपको करने हैं तो करिए, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, हैंड उसे हाइजीन, उसको नजरअंदाज उसको मत ये करें। That is very most important. So a lot of questions have come in on social media with us, and let me go across to Dr. Chatterjee. If you could answer a few of them, and before that, let's take a caller. Ajay has joined us from Himachal. Ajay जी पूछिए अपना सवाल। डॉक्टर नमस्कार, मैं हिमाचल से नालागढ़ से अजय बच्ची बोल रहा हूँ। जी पूछिए। तो सर, जैसे हमारी ये शॉप खुल गई है हमारे यहाँ पे, तो जैसे हम किसी करेंसी लेते हैं, नोट लेते हैं, उनको कैसे सैनिटाइज किए? बिल्कुल डॉक्टर पीयूष, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जिस तरह से अब लॉकडाउन में कुछ एक जगहों पे ढील दे दी गई है, बहुत से ऐसी जगहें ऐसी हैं जहां लोगों का ये मानना है कि सब कुछ ठीक हो रहा है इसलिए लॉकडाउन खुल रहा है। ये धारणा अब लोगों में कहीं ना कहीं है। इसको आप कैसे कहेंगे, कैसे चीजों को सैनिटाइज भी करना होगा, अपना ध्यान भी रखना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनकर निकलना होगा, क्योंकि अभी भी हम इस लड़ाई से जीत नहीं पाए हैं, अभी भी हम इससे बाहर नहीं निकले हैं। जी, अभी तक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सबसे पहले ये समझे लॉकडाउन किया किसके लिए गया। ये ना डॉक्टर के लिए किया गया, ना ही प्रशासन के लिए किया गया, ये आपके लिए किया गया है। जब कभी आप इस बात को मानेंगे कि लॉकडाउन और उससे रिलेटेड सारी प्रक्रिया आपके लिए की गई है, तो इस थोड़े कठिन समय से निकलना आपके लिए आसान होगा। पहली ये बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि इस दौरान आप क्या क्या चीजें करें। तो जितना बेयर मिनिमम हो आप घर से बाहर निकले, बहुत आवश्यक चीज जो कि आपके घर के लिए आवश्यक हो और जो आपके समाज के लिए आवश्यक हो, उसी चीज के लिए आप बाहर निकले। और उस दौरान जो कि हम लोग बार बार कह रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग और पर्सनल प्रोटेक्शन यानी मास्क लगा करके निकलें, अफवाहों पर ध्यान न दें, घर में जाने से पहले और घर वापस आने के बाद अपने हाथ को बराबर छुएं, और घर में जो कि वर्नेबल ग्रुप है यानी जो सीनियर सिटीजन आपके घर में, उनके लिए विशेष तौर पर आप ध्यान रखें। इन चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो लॉकडाउन के दौरान में
जो मूल मकसद है उसे हम लोग हासिल कर पाएं। Fair enough. Dr. Chatterjee, questions have come in on social media. Let's take them up one by one. I'll come to you first. How is the recovered patient's body compromised and the possible health risks in future? So essentially the person is asking that if someone gets infected and gets recovered, in future is the immunity compromised? What are the health risks that could come in? No, I will say there is no future implication, much future implication for that. If you are infected with one antigen, that is this time it's SARS-CoV-2, your immune system has created one antibody against this. How much, that depends on your previous status. So, but this does not mandate that you will have further infection, other infection, and your immune system is compromised. So don't be panicky for that. Okay. Dr. Ranjan, a question that has come in from another social media user is that it is said that this virus will fade out with the hot season. How far is this true? No, this is not true. As you are already flashing in your TV screen that the temperature has not got the much role in controlling so far as epidemic is concerned. The temperature can only control the droplet type of infection to some extent, a type of droplet infection is the airborne type of infection. And that too, when the infection is, the temperature is controlled only with the fomite-borne breeding that is there. So I don't think one should, so there is lot of myth that is flowing, that is circulating here and there, that in WhatsApp, that if you would stand or if in the sun for say a particular duration of time, or if you will have hot shower or like that. So this is not going to control the epidemic per se. So far as it is there, so only social distancing, hand washing and personal hygiene is going to help. जी, डॉक्टर चौधरी आपके पास आना चाहेंगे एक सवाल के साथ कि अभी हम न्यूज रूम में भी यही बात कर रहे थे कि आप डॉक्टर शो अब करने जा रहे हैं, तो डॉक्टर साहब से ये जरूर पूछिएगा कि ये एक बड़ी आम बातचीत अब लोगों में होगी क्योंकि एक लंबा लॉकडाउन है और सब लोग घर पर थे कि बहुत हुआ, अब इसे खुल जाना चाहिए, बोर हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, दिमाग खराब हो रहा है, इस तरह की जो ये लेमैन भाषा में जिस तरह से हम आम बातचीत करते हैं, तो जाहिर है एक एंजाइटी है, एक डिप्रेशन है जिसकी तरफ हम बढ़ना शुरू करते हैं, एक अकेलापन है जो आपको काटता है क्योंकि आप रोजमर्रा इतने लोगों से मिलते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, बाहर निकलते हैं। इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, किस तरह से हम अपने आप को शांत कर सकते हैं और इससे लड़ने में अपने आप को सक्षम बना सकते हैं? हाँ, ये प्रश्न पहले वाला प्रश्न से जुड़ा भी हुआ है कि लॉकडाउन अगर खत्म हो जाए तो क्या करेंगे। देखिए, लॉकडाउन अनियमित टाइम तक नहीं चल सकता, लॉकडाउन का एक अवधि हो सकता है, लेकिन उसके बाद हमारे देश के लिए, आप लोगों के लिए, हमारे काम, रोजमर्रा के काम के लिए इसको खोलना पड़ेगा। लेकिन प्रश्न यही है कि क्या हमारी जिंदगी पहले जैसी हो जाएगी? अभी जो आसार नजर आ रहे हैं उससे ये लगता है कि नहीं होगी। हमें वही सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। काम में अगर हम फैक्ट्री में जाते हैं या कोई ऑफिस में जाते हैं, वहां पर भी वो डिस्टेंसिंग का मेजर हमें रखना है। हमें जब हम लोग एक दूसरे से मिलने जा रहे हैं वो भी हम अवॉइड कर सकते हैं जितना हो सके। हमारा कनेक्टिविटी अभी वेब के थ्रू से होगा, फोन के थ्रू से होगा, व्हाट्सएप के थ्रू से होगा। सो ये सारे साधन हम यूज करेंगे, लेकिन जो एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट है, जिस लाइफ से हम यूज टू है, उस लाइफ को हमें परिवर्तन करना पड़ेगा। अब काफी लोग बोल रहे हैं बहुत दिन हॉल में बैठ के पिक्चर नहीं देखा। बिल्कुल। अच्छा, मेरे काफी सारे फ्रेंड बोल रहे हैं अरे चलो छुट्टी, इसके बाद जब जैसे खत्म हो जाएगा तो छुट्टी लेके परिवार को लेके जाएंगे। मेरे ख्याल से ये आइडिया अभी हमें स्थगित रखना पड़ेगा। कितने दिन मैं नहीं जानता, लेकिन उम्मीद है कि अगले 6 से 8 महीने तक ऐसा ही चलने वाला है। और ऐसा अगर नहीं करेंगे तो स्पर्ट्स में अलग अलग जगह से केसेस आने उभरने शुरू हो जाएंगे और फिर हमें पुनः लॉकडाउन के बारे में सोचना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि आपने जाना होगा अभी तक कि बहुत सारे लोग इस इंफेक्शन में एसिम्टोमेटिक या माइल्डली सिम्टोमेटिक है। तो बाहर से देख के आपको मालूम नहीं पड़ेगा, जिससे आप मिल रहे हैं, जिससे बात कर रहे हैं, जिसके संपर्क में आ रहे हैं, कि वो सिम्टोमेटिक ना भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी वो स्प्रेडर हो सकते हैं, वो स्प्रेड कर सकते हैं। इसीलिए ये जो हमें संयम, ये हमें बरताना है। दिस हैज टू बी द वे ऑफ लाइफ। डॉक्टर रंजन, the question that is commonly asked by people, like Jyotika said, is still when is this going to last? Now there are different predictive models that have emerged. One in Singapore, one in the United States. The United States one says that this is not going anywhere for another 18 to 24 months. The Singapore one says the last of the few cases could be in India sometimes in July end, and that could be February 2021 as far as the whole world is concerned. So what would you say if you have to give a month or a year to the end of this? What would you say?
देखिए, इसमें जो इसका प्रिडिक्टिव मॉडल है वो इस बात पर निर्भर कर रहा है कि लोग एक दूसरे के साथ कितना ज्यादा जुड़ते हैं। ये एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है, 1 गुना 2, 2 गुना 2, 2 गुना 4, 4 गुना 4, 16, 16 गुना 16, 256 और इस तरह से। अब इस लॉकडाउन के द्वारा हम लोग ऐसा करते हैं कि जो इसकी गति है इसको कम कर रहे हैं। ये खत्म कब होगा? जबकि हमारी टोटल पॉपुलेशन का लगभग 70% लोग जो हैं वो एपिडेमियोलॉजिकली इसके द्वारा इन्फेक्टेड और इम्यून हो जाएंगे। और जब तक वो इम्यून होते हैं तब तक हमें अपने हेल्थ केयर सिस्टम को बचा के रखना है ताकि वो ओवरवेल्म ना हो जाए। सबसे पहली ये बात। और दूसरा, जो इसकी वजह से जो परेशानी हो रही है, जो हमारे जो वर्नेबल एज ग्रुप वाले लोग हैं, जो कि हमारे बुजुर्ग हैं, उनको तब तक बचा करके रखिए जब तक कि इसके लिए सटीक दवा या फिर वैक्सीन ना मिल जाए। बिल्कुल। आपने समय के बारे में पूछा। समय के बारे में अगर लॉकडाउन को अगर हम लोग बिल्कुल अगर हम लोग इनडेफिनेटली अगर ये करके रहे तो आपने देखा कि डबलिंग टाइम जो है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। जैसे अभी कुछ समय पहले 6 दिन था, 6 दिन के बाद 8-10 दिन जो अभी हमारे देश में है। लेकिन जैसा सर ने कहा ये रेगुलरली नहीं हो पाएगा, तो फिर इसके बाद ये डबलिंग टाइम जो जैसे भी ये लोग आएंगे और अगर लोग इतने संयमित रह सके कि वो हमारी आर्थिक गतिविधियां भी चलती रहें और जो जरूरी चीजें हैं चलती रहें, लेकिन जो एक बात कही गई न्यू नॉर्मल के डेफिनेशन की, जिसमें कि शायद हॉल जाकर सिनेमा देखना थोड़े समय के लिए अवॉइड करना होगा। अगर ऐसा हम लोग सोचे तो इसकी वास्तविक स्थिति अगर हम समय की बात करें तो वो जून महीने के अंत तक हम लोग ऐसा सोच पाएंगे जैसे अभी 17 मई के बाद अगर हम लोग समझते हैं कि लॉकडाउन में पार्शियल ढील दी जाएगी और जून महीने के लास्ट तक हमें ये पता चलेगा कि हम कहां पर खड़े हैं। बिल्कुल। क्या हम लोग इटली के जैसा पहुंच गए जिसमें कि अचानक से एक दिन के बाद वो केसेस जो है वो बबल अप हो गए, तो फिर जैसा सर ने कहा कि फिर से हमें स्ट्रिंजेंट मेजर ये करने पड़ेंगे। लेकिन अगर लोगों ने इतना ही संयम दिखाया तो शायद जून के लास्ट तक हम ये समझ पाएंगे, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीजें हैं। सर ने भी कहा कि एक के बाद जो आईसीएमआर के रिसेंट डाटा में आया, एक सिम्टोमेटिक केस में 10 एसिम्टोमेटिक केसेस हैं। जरूर ये वायरस हमारे अपने परिवेश में उतना ज्यादा वायरुलेंट नहीं है, तो वो समय शायद जून लास्ट तक होगा जिसमें कि हम लोग इन सारी चीजों को जोड़कर बता पाएंगे कि हम लोग कहां खड़े हैं, हमारी अपनी इम्यूनिटी कहां पर खड़ी है और ये इन्फेक्शन हमें और कितने समय तक और ज्यादा संयम करने के लिए ये बता। बिल्कुल। हाँ, हम लेते हैं मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है जान है जहान, अगर जान है तो ये जहान रहेगा। और अगर इस नारे के साथ हम आगे बढ़ेंगे कुछ देर के लिए, अगर हम डिजिटल जिंदगी को अपना लेंगे तो शायद हम सभी का फायदा है, हम सब सुरक्षित बिल्कुल रहेंगे। हमारे साथ डॉक्टर मृदुल कुमार डागा भी जुड़ गए हैं, प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका भी हमारे शो में। और हमारे साथ एक कॉलर है प्रशांत दिल्ली से। प्रशांत, आपका भी स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। जी प्रशांत। डिसऑर्डर की है तो प्रशांत, यू मे ट्राई कॉलिंग अस अगेन। आप फिर से हमें कॉल कर लीजिए क्योंकि आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। Many questions have come on social media. Mr. Dr. Daga, I'll come to you for answers on some of them. One of them being that what are the precautions that need to be taken in rainy season? Are extra precautions expected of people when it rains? देखिए, रेन में एक्स्ट्रा प्रिकॉशन ये है कि थोड़ा बहुत आपको बारिश से बचने की जरूरत है। हो सकता है उससे कभी आपको थोड़ा खांसी जुकाम हुए, लेकिन अगर आप किसी के संपर्क में नहीं आए हैं, कोरोना जो एक्सपोजर नहीं है, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको कोरोना होए। लेकिन जैसा आप देख रहे हैं कि बहुत से लोगों को सिम्टम्स होते नहीं हैं, तो आपको वही सारे बचाव रखने हैं और कोशिश करिएगा कि बारिश में गीला ना हो, भीगे ना, तो अच्छा रहेगा। लेकिन ऐसा कोई इसमें एक्स्ट्रा कुछ और ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। पर हाँ, ये जरूरी है कि आपको हैंड हाइजीन बहुत जरूरी है, डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। बिल्कुल। डॉक्टर चौधरी, मैं आपके पास आऊंगी। रेनी सीजन का एक सवाल आया है कि अगर बारिश से कैसे बचा जा सकता है। भगवान का शुक्र है मौसम आजकल बड़ा अच्छा चल रहा है, तो गर्मी ज्यादा बढ़नी नहीं है, लेकिन अब गर्मी जैसे बढ़ेगी सब लोग एसी की तरफ बढ़ेंगे। और एक मिथ ये भी है, या फिर इसमें कितनी सच्चाई है, कि अगर आप ज्यादा एसी में बैठेंगे तो शायद आप
कोरोना से पॉजिटिव हो जाएंगे। इस चीज को आप कैसे क्लियर करेंगे और किस तरह से, अगर आप एसी भी ऑन करते हैं, खासकर अगर सेंट्रलाइज्ड एसी में अगर आप काम कर रहे हैं, किस तरह से आप अपने आप को बचा सकते हैं? क्या क्या आप बताएंगे इसके बारे में? नहीं, ये टेम्परेचर का और कोरोना वायरस के साथ जो एक कॉन्फ्लिक्ट है, ये बहुत ही रोचक है। पहले एसी वाला जवाब देता हूं। एसी में पर से कोई खतरा नहीं है। अगर आप सिर्फ अपने घर में एसी चला रहे हैं, अपने एक सेक्लूडेड रूम में बैठ के एसी चला रहे हैं, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेल्थ केयर फैसिलिटीज में जहां पर इंफेक्शन आ सकते हैं, वहां पर अगर क्लोज्ड रूम्स हैं, जहां पर एसी सर्किट्स हैं, जहां पर सेंट्रलाइज्ड एसी सिस्टम्स हैं, जहां वही हवा अंदर सर्कुलेट हो रही है, वहां पर इंफेक्शन का फैलाव होने का डर रहता है। इसीलिए हम सारे आईसीयूज और कोविड वार्ड्स जो हैं, उनको अब एसी बंद कर रहे हैं और हम वॉल एसी विद एग्जॉस्ट लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक टेम्परेचर की बात है, ये प्रश्न पहले भी डॉक्टर साहब ने उत्तर दिया। देखिए, जो मालूम होता है कि ये वायरस बैट से आया है, और बैट जब फ्लाइट में जाता है तो वो बहुत हाई टेम्परेचर गेन कर लेता है, वो एकदम फीवर जैसा टेम्परेचर हो जाता है। तो वायरस उस फीवर में भी बैट में सरवाइव करता है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होने से ये वायरस नष्ट हो जाएगा, ये सोचना शायद ठीक नहीं होगा। हाँ, जरूर है कि इट्स अ प्रोटीनेशियस सब्सटेंस, प्रोटीन है, उसके ऊपर एक एनवेलप है फैट का, और बहुत ज्यादा टेम्परेचर अगर का एक्सपोजर हुआ, लेकिन वो टेम्परेचर रीच करने में बहुत मुश्किल है। नॉर्मल आम तौर पे घर के अंदर कपड़ों में, हाथों में वो टेम्परेचर रीच नहीं हो सकता। इसीलिए अगर ये सोचे कि गर्मी आने से ये बीमारी कम हो जाएगी, तो मेरे ख्याल से ये सोचना ठीक नहीं होगा। डॉक्टर रंजन, आप इसमें ऐड करना चाहेंगे कि ठंडा पानी पीना है, गर्म पानी पीना है, ये भी हमारे बुजुर्गों के साथ भी इसको जोड़ा जा सकता है। सब मानते हैं, ऐसा घर में कहा कि गर्म पानी पीजिए, ठंडा मत पियो। गर्मियां आ रही हैं, जाहिर है बच्चे भी ठंडा पानी पीएंगे, और हम सबकी भी चाह होती है कि हम झट से जाएं और ठंडा पानी पी लें। तो आप इसको कैसे काउंटर करें? देखिए, ठंडा पानी और गर्म पानी पीने से कोरोना के इन्फेक्शन पर कोई भी सीधे तौर पर संबंध नहीं है, पहली ये बात। अब इसे एक जनरल एडवाइजरी के रूप में दे सकते हैं कि अगर वो ठंडा पानी पीने की वजह से अगर गला खराब हो जाएगा तो मन में एक संदेह हो जाएगा। अभी चूंकि माहौल कोरोना का के जैसा बहुत ज्यादा है, तो अगर नॉर्मल एलर्जिक या फिर कोल्ड की वजह से भी हल्का अगर आपको मौसमी गला अगर खराब हो जाता है, तो भी मन में एक संदेह जैसी स्थिति होगी। तो संभव है तो इसका आप अवॉइड कर सके तो करें, लेकिन जो बातें हैं हम लोग अभी पिछले 2-3 प्रश्नों में कर चुके हैं कि इसमें टेम्परेचर का सीधे तौर पर इस वायरस के इन्फेक्शन से कोई संबंध नहीं है। Dr. Daga, 2 questions have come in on social media. I'll take both of you to you. One being that I have hypothyroidism. What precautions shall I take? Am I at a higher risk because of this condition? Also, I have gone through organ transplant, so is my immunity low? Do I have to be isolated until a cure is out? 2 different questions from 2 different viewers. Your response. I think hypothyroidism जो भी chronic बीमारी है, all people with chronic illnesses should take care. You have to take extra precaution. But if your thyroid status is under control and you are eating normally, you are exercising, keeping yourself healthy, and maintaining that safe distance, hand hygiene, there's nothing to worry. On the other hand, a person who is already a patient of cancer or immunosuppressive, ये जरूर है कि उसकी इम्यूनिटी थोड़ी कम होती है, तो उससे थोड़ा ज्यादा बचाव रखने की जरूरत है, आइसोलेट करने की भी जरूरत है। लेकिन आप अपने घर के एनवायरनमेंट में आराम से रह सकते हैं। अगर आपके घर में किसी को कोई तरह का इन्फेक्शन नहीं आ रहा है कोई, तो then you will be okay. There is nothing to worry about. And what about those who've gone through organ transplants? Yeah, those who've gone through organ transplants also, you have to be very careful. You have to be more cautious about maintaining all these, distancing, wearing a mask, and also, keeping a good hand hygiene and exercising little bit, eating good food, lots of vegetables and fruits, those will help you, keeping you, away from this. So you have to do that. जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, गणेश है महाराष्ट्र से। गणेश जी, स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। मेरा सवाल ये था कि अभी जो लॉकडाउन पीरियड चालू है, ये खत्म हो जाने के बाद भी अगर घर पे कोई एसी सर्विसिंग के लिए बंदा आता है या फिर वाटर प्यूरिफायर जैसे, मतलब घर में जो सुविधा है जिसके लिए बाहर से कोई आता है जो सर्विसिंग के लिए, तो उसके लिए हमें क्या प्रिकॉशंस घर पे रखना है? मतलब मेरे बुजुर्ग है घर पे, मेरे छोटे बच्चे हैं, तो उनके हिसाब से मुझे क्या प्रिकॉशन रखना है कि
वो बंदे आए घर में और मेरा काम भी हो जाए और मेरी हाइजीन भी रहे घर पे, ताकि मुझे कोई कोविड-19 से कुछ इम्पैक्ट ना हो। डॉक्टर डागा आपके पास आएंगे सवाल के साथ। घर में अगर गेस्ट आ जाएं, कभी बिना बुलाए गेस्ट भी आ जाते हैं, तो कैसे अपने आप को बचाया जा सकता है कि वो स्वस्थ भी रहे, उनके घर में बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं? सबसे पहले तो ये मैं देखिए कि उसको कोई पूछिए उनसे, थोड़ा दूरी रख के कि उनको कोई सिम्टम्स तो नहीं थे पिछले कुछ दिनों में, वो और कोई ऐसी बात तो नहीं है, क्योंकि वो और दूसरे घरों में भी जाते होंगे रिपेयर करने के लिए, वहां पे भी उन्होंने काम किया होगा। तो ये सारी चीज पूछने के बाद आप उनको ऐसा करिए कि मास्क पहने, वो हाथ में ग्लव्स पहने, अपना काम करें, तब लोग उनके नजदीक न जाएं, और करने के बाद वो जा सकते हैं। उसके बाद जो चीज उन्होंने किया है ठीक, उसको आप थोड़ा क्लीन भी कर सकते हैं, सैनिटाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि और लोग उसको टच ना करें। इस तरह की प्रिकॉशन करने की जरूरत है। आप रोक तो नहीं सकते, आपके अगर काम जरूरी है तो आपको करवाना ही पड़ेगा। जहां तक आप अवॉइड कर सकते हैं वो करिए, पर ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। Now, Dr. Ranjan, more questions have come in on social media. One being that I'm a government employee in Ranchi and I have to attend office frequently. What precautions should I take? इसमें देखिए प्रिकॉशन बिल्कुल नॉर्मल है, जो कि सभी लोगों के लिए ये होता है कि आप भीड़ भाड़ वाली जगह को आप अवॉइड करें। जब आपको दफ्तर जाना हो, अगर आपके लिए ये पॉसिबल हो, घर के नज़दीक रह रहे हो, तो पैदल जाएं। लिफ्ट के बजाय जो है वो आप सीढ़ियों का प्रयोग करें। ये अदरवाइज जो आपको क्लोज्ड चैम्बर में बहुत ज़्यादा लोगों के साथ जो है एक साथ सफ़र करने से आपको बचाएगा, आपकी सेहत को भी ठीक रखेगा। मास्क पहन करके जाएं। आई थिंक ज़्यादातर राज्यों में, ज़्यादातर जगहों पर ये एक तौर पर कानूनन बाध्यता भी अब ये बनी हुई है, तो वो आप करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने हाथ को धोने की कोशिश करें, हर 2-3 घंटे में एक बार। और एक आदत में अगर आप परिवर्तन कर सके तो अपने हाथ से अपने चेहरे, अपने आंख, अपने नाक, इसको छूने की आदत से आप अपने आप को बचाएं। घर आने के समय में जो आपके जो बुजुर्ग जो घर में हैं, उनसे थोड़ी दूरी बना करके रखें। जहां तक संभव हो अपने हाथ पैर को धोकर, और अगर संभव हो तो एक शावर लेकर के ही आप घर के बाकी काम की शुरुआत करें। डॉक्टर चौधरी, इसमें आप अगर ऐड करना चाहेंगे, जिस तरह से अभी भी ये प्रैक्टिस चल रही है कि जो लोग घर से फ्रीक्वेंटली हर रोज काम के लिए निकल रहे हैं और जब वो वापसी करते हैं तो वो एक अलग कमरे में अपने आप को रखे हुए हैं, अपना एक अलग बाथरूम उन्होंने बनाया हुआ है, वो वहीं रहना ज्यादा बेहतर समझते हैं, ताकि जो इन्फेक्शन है वो घर के दूसरे सदस्यों तक ना पहुंचे। इस प्रैक्टिस को आप कैसे देखते हैं? इसे कंटिन्यू करना कितना सही है? नहीं, ये जरूरी नहीं है। अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जब काम करके घर लौटें तो अपना जूता जुराब जो है वो घर के बाहर एक जगह रखिए, उसको घर के अंदर नहीं लाइए। आप सीधा अपने बाथरूम में जाइए, अपने कपड़े उतारिए, कपड़े को 20 मिनट डिटर्जेंट वाले पानी में, गर्म पानी में डुबा के रखिए। शावर लेना चाहते हैं तो एक अच्छा शावर लें, और नहीं तो अच्छी तरह अपने हाथ मुंह साबुन से धोएं। दिन भर में भी आपने यही किया है, दिन भर में काफी बार अपने हाथ अपने साफ किए हैं, सैनिटाइजर इस्तेमाल किए हैं। अब जब आप ये करके चेंज करके नीचे आए तो जरूरी नहीं है कि आप घर में ही एक कमरे में ही सीमित रहे। आप घर के दूसरे मेंबर से भी मिल सकते हैं, लेकिन जो डिस्टेंसिंग है उसका प्रिंसिपल पालन कीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जहां तक अगर कहीं पर ऐसा हुआ कि कोई एक्सीडेंटल एक्सपोजर हो गया, जैसे संदेह है कि आपने ऐसे कोई व्यक्ति के साथ संपर्क में आए जिसको पॉजिटिव हुआ है या पॉजिटिव होने की संभावना है, तो फिर आपको आइसोलेशन की जरूरत है। जी, गुड़गांव से हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। सर नमस्कार। ऐसा है जी, मेरी पिछले 2 साल से दिमाग की दवाइयां चल रही है साइकिट्री की, और एक महीने से यूरिन की। तो हमारा अभी लॉकडाउन की वजह से हॉस्पिटल दूर है, मैं जा नहीं सकता। मेरे पास 10 दिन की दवाई बाकी है, क्या मैं अब वो आधी लेनी स्टार्ट कर लूं ताकि 20 दिन चल जाए, और उसके बाद जब माहौल ठीक होगा मैं ला जाके ले आऊंगा। दूर पड़ता है हॉस्पिटल, अभी आधी ले लूं, कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा। ओसीडी मेरी लगभग ठीक होने को है, 2 साल पहले से थी, अब तो लगभग मैं ठीक हूँ। और यूरिन की दवाई मुझे बार बार आती है, पिछले 1 महीने से चल रही है। तो आधी ले लूं, 10 दिन की 20 दिन चल जाएगी, उसके बाद ले आऊंगा। डॉक्टर चौधरी, वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड टू दिस? नहीं, जो दिमागी बीमारी होती है उसमें जो डोज दिया जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो डोज में परिवर्तन मत कीजिए। आप बेशक वो दवाई 15 दिन और ज्यादा चला लीजिए अगर डॉक्टर से संपर्क अभी कर नहीं पा रहे हैं,
लेकिन मोस्ट ऑफ द केमिस्ट शॉप्स खुले हुए हैं, केमिस्ट शॉप में दवाई मिल रही है, तो एटलीस्ट आपके पास 10 दिन है और 5 दिन का खरीद लीजिए। उसके बाद जैसे ही लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो आप जा पाएंगे अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल में या डॉक्टर में। वैसे अभी भी इमरजेंसी सर्विसेज के लिए सारे हॉस्पिटल्स खुले हुए हैं, तो अगर कोई प्रॉब्लम इमरजेंसी में आता है तो आप अस्पताल में जा सकते हैं, लेकिन दवाई को आधे डोज में लेना ये उचित नहीं होगा। सपोज किसी को दौरे की बीमारी है, अगर वो सोचे कि मैं आधी गोली लेके ये टाइम पास कर लूं, तो वो उचित नहीं। डॉक्टर चौधरी, इफ यू वुड लाइक टू ऐड इन दिस कि जो सेल्फ मेडिकेशन का जो चलन है, इस पर भी किस तरह से आप अगर थोड़ी रोशनी डालना चाहें। ये भी बहुत फैशन में है हमारे देश में कि ओवर द काउंटर लोग जाते हैं और दवाई लेते हैं और खा लेते हैं जी। इस पर आप कुछ कहें। जी, सेल्फ मेडिकेशन कुछ हद तक कुछ चीजों के लिए ठीक है। जैसे आपको थोड़ा बहुत शरीर में वेदना हुआ तो आपने कोई पेन किलर ले लिया, आपको थोड़ा बुखार जैसा महसूस हुआ तो आपने पैरासीटामोल की गोली खा ली, कोई खांसी हुआ तो पहले कफ सिरप मिलता था, आजकल तो वैसे कफ सिरप में भी पाबंदी आ गई है, तो कफ सिरप ले लिया। लेकिन अधिकतर रूप में जो ज्यादा दिक्कत वाली बीमारियां हैं उसमें सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको डॉक्टर के दिखाए बिना, उनके परामर्श के बिना आपको दवाई नहीं लेना चाहिए। दवाई जिस मात्रा में दी गई है उसी मात्रा से लेना है। अगर आपको बोले हैं दिन में 3 बार लीजिए तो 3 बार लेना है। आप सोचे कि 2 बार लेके मैं ठीक हूं। मेरे पास बहुत सारे ब्लड प्रेशर के मरीज आते हैं जो कहते हैं डॉक्टर साहब आज मेरा सिर भारी था तो मैंने एक दवाई गोली ज्यादा ले ली, और आज मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं तो मैंने एक दवाई कम कर दी। ऐसा नहीं करना है। काफी सारे, मैं जो ब्रेन का डिजीज का डॉक्टर हूं, काफी सारे ब्रेन के जो डिजीज के जो दवाई दी जाती है वो शरीर में एक लेवल, एक मात्रा तैयार करती है, और वो मात्रा बनाए रखना बहुत ही जरूरी है। तो इसीलिए दवाई में आप ये ओवर द काउंटर या अपने हिसाब से दवाई लेना उचित नहीं, ये मत कीजिए, इससे आपको आखिरकार हानि होगी। और तीसरी बात, कोविड के सिम्टम्स काफी वैरिड हैं। जैसे उनको अचानक शरीर में दर्द हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है, जैसे लगे शरीर टूट रहा है, ये भी पहले संकेत हो सकते हैं। तो इसीलिए वो संकेत को भी नजरअंदाज मत कीजिए। अगर आपको ये हो रहा है और परसिस्टेंटली हो रहा है, लगातार हो रहा है, जो पहले नहीं हो रहा था, तो आप अपने जो डॉक्टर है उनसे संपर्क करिए। So consult your doctor and do not reduce your doses on your own. Another question that's come in on social media, and Dr. Daga, I'll direct the question to you. Yeah. Our largest main vegetable market, which supplies to all smaller ones and in the entire Chennai, has 150 plus positive cases. Vendors are buying vegetables from a market where people have tested positive. Is it still safe to buy vegetables because we don't know the source of where the vegetables are coming from? आई थिंक ये पहले भी बहुत बार सवाल आया है, और इसमें यही है कि आपको खरीदना तो पड़ेगा। आप बिना सब्जी खरीदे कब तक चलाएंगे? और आप जब लेते हैं सब्जी तो उसको बहुत अच्छी तरह से पानी से, गर्म पानी में क्लीन करिए, उसको थोड़ी देर रखिए उसमें, और जिस भी आप थैले में वगैरह लेते हैं उसको भी आप साफ करिए। ये सारे प्रिकॉशन लीजिए तो किसी तरह की आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसे बीमारी आपको नहीं होगी। वो वेंडर अगर आपके घर पे देने आ रहा है तो आप वही सब डिस्टेंस मेंटेन करिए, और ये सारा आप अगर करेंगे तो इसमें किसी तरह की आपको बीमारी होने का कोई शक नहीं है। बिल्कुल। डॉक्टर चौधरी, आपके लिए एक सवाल है कि आजकल क्योंकि लॉकडाउन है और सब घर पे हैं और बहुत बड़ी संख्या में लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं, कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत लंबे समय के लिए कर रहे हैं। देखा जा रहा है कि जो शिफ्ट टाइमिंग्स होते हैं, आप ऑफिस गए, अपनी शिफ्ट खत्म की, आप घर आ गए, लेकिन वर्क फ्रॉम होम में ये शिफ्ट्स भी एक्सटेंड हो रही हैं। तो ये कंसर्न निकल कर आ रहा था कि किस तरह से ऐसी स्थिति में हम खुद का ध्यान रख सकते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स निकल कर आती हैं, किसी को माइग्रेन हो रहा है, किसी को सर भारा हो रहा है, जैसे कि अभी आपने बताया। बच्चे भी ऑनलाइन क्लासेस आजकल ले रहे हैं, तो उनका भी एक्सपोजर जो लैपटॉप से कंप्यूटर्स है या टैब्स है वहां पर ज्यादा हो रहा है। तो आप किन चीजों पर ज्यादा जोर देंगे कि जिनका ध्यान रखा जाए? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है आपने, और ये अभी मेरा एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है एनुअल्स ऑफ इंडियन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी में, जिसमें मैंने बताया है कि लॉकडाउन में जब आप घर से काम कर रहे हैं तब भी आप एक शेड्यूल फॉलो कीजिए। घर से काम करने का मतलब ये नहीं है कि कोई भी शेड्यूल फॉलो करे। जैसे आप ऑफिस जाते हैं उसी समय आप अपना काम शुरू कीजिए, अपना कंप्यूटर ऑन कीजिए, हर आधे घंटे 45 मिनट के बाद एक ब्रेक लीजिए। कंटिन्यूअस आप लैपटॉप की तरफ या अपना कंसोल के ऊपर देखते रहेंगे तो आपको आई में स्ट्रेन होगा, ड्राई आईज और कंजंक्टिवाइटिस इस
तरह की चीजें की बहुत संभावना बढ़ जाती है। इनफैक्ट काफी पेशेंट्स मेरे हैं जो कि वो बोल रहे हैं कि डॉक्टर साहब मेरे को आजकल आंखों में इरिटेशन शुरू हो गया है, क्योंकि कंप्यूटर बहुत ज्यादा देख रहे हैं, मोबाइल बहुत ज्यादा देख रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, अगर आप कंटिन्यूअस आई को फोकस करके चलेंगे तो आई के मसल्स ओवर एक्टिव रहेंगे, उसके वजह से भी हेडेक बन सकता है। तो उसको कहते हैं मसल कंट्रैक्शन हेडेक, वो भी आपको परेशान कर सकता है, आपको सुस्ती बना सकती है, आप में आपको लगता है कि शाम होते होते तक एकदम पस्त हो गया। तो इसलिए गैप्स देना बहुत जरूरी है। आधा घंटा 45 मिनट काम कीजिए, फिर उठिए, थोड़ा चलिए 5-10 मिनट, थोड़ा पानी पीजिए, थोड़ा अपना वेरिएशन रखिए और फिर से काम कीजिए। जैसे आप रूटीन में काम करते हैं, दोपहर को लंच का टाइम मिस मत कीजिए, लंच उसी टाइम पे लीजिए। फिर पोस्ट लंच काम करने के बाद जैसे आप ऑफिस से निकलते हैं, उसी समय आपका लैपटॉप बंद कीजिए, बंद करके अपने आप को समय दीजिए। उस समय घर के अंदर या अपने छत में आप वॉक कर सकते हैं, थोड़ा योगा कर सकते हैं, थोड़ा मेडिटेशन कर सकते हैं। और इसके अलावा मेरे को मालूम है आजकल आपको बहुत और भी काम करने पड़ रहे हैं, जैसे अपना घर का पोछा, बर्तन साफ करना, खाना बनाना, ये सब कुछ पहले शायद आप नहीं करते थे। मैं भी काफी कुछ नहीं करता था, अभी भी मेरे को करना पड़ता है। तो ये सब भी आपको टाइम निकालना पड़ेगा। तो इसीलिए ये एक सिस्टम में लाना है। इट हैज टू फॉलो सिस्टम, बिकॉज बॉडी लव्स अ सिस्टम, बॉडी लव्स अ सर्केडियन रिदम। डॉक्टर, आपने अगर बच्चों के बारे में अगर आप बता दें कि कुछ बच्चों के स्पेक्स भी है, कुछ बच्चों के चश्मा लगा होता है और वो भी लंबे टाइम के लिए जब एक्सपोजर होता है, लैपटॉप है या कंप्यूटर है, वो कैसे ध्यान रखें? बच्चों में हम कैसे ध्यान रख सकते हैं? बच्चों में भी सेम रूल अप्लाई होता है कि टाइम में बीच में गैप दीजिए। लेकिन बच्चों में एक और चीज होती है प्रॉब्लमैटिक, वो है द पोस्चर। वो किसी भी पोस्चर, लेटे हैं, टेढ़े मेढ़े, मोबाइल को सामने लेके उसमें गेम्स खेल रहे हैं, तो उनका आई का जो एक्सेस है और जो लैपटॉप या मोबाइल है उसके साथ बहुत ज्यादा उसका दिक्कतें आ सकती हैं। तो इसीलिए प्रॉपर पोस्चर, प्रॉपर पोजीशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे शुड फॉलो द सेम डिक्टम of not doing continuously a particular job on mobile or laptop regularly. There's a caller who's joined us. KK Agarwal has joined us from Prayagraj. Yes, Mr. Agarwal, please ask your question. मेरा क्वेश्चन नहीं है, मेरा एक सजेशन है। हम देखते हैं कि मैं आंख के डॉक्टर हूँ, जब भी मरीज मेरे पास आके बैठता है अपना मास्क नीचे कर लेता है। अब मैं उससे कहता हूँ कि नाक के ऊपर रखो, कहीं नहीं, मैं टीवी में देखता हूँ सब लोग वो मास्क नीचे करके तब बात करते हैं। तो एक सिस्टम बना ले, जो भी टीवी के सामने आए वो मास्क पूरा जैसे सही ढंग से यूज करना चाहिए उसको करे, तो ये एक अच्छा मैसेज जाएगा पूरे भारतवर्ष में। Dr. Daga, do you agree with this? Because we know that now face covers of some sort or the other are virtually necessary for everyone as per the government guidelines. मैं बिल्कुल सहमत हूँ उससे। मैं आपको ले जाना चाहता हूँ जैन धर्म में, जहाँ पे कि जैन धर्म में तो ये एक रूल बना हुआ है कि वो अपना बाहर जब निकलते हैं, घर में भी रहते हैं तो मुंह कवर करके, मुपत्ती जिसको बोलते हैं, पहने रहते हैं। साधु महाराज भी आप लोगों ने देखे होंगे। तो ये बिल्कुल सही है कि आपको जब मास्क अगर दिया है तो उसका पूरा इस्तेमाल कीजिए। आप नीचे कर देंगे, नाक एक्सपोज करेंगे आपका, वो कोई फायदा नहीं है। और उसका यूज करने का तभी फायदा है जब आप उसको इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। तो ये बहुत जरूरी है। पर अगर ये टीवी की डिबेट्स में और वगैरह ऐसा आता है तो कभी कभी वो कुछ कारण से हो सकता है, कोई उनका उद्देश्य नहीं है। ज्यादातर लोग बहुत दूरी पे बैठते हैं और दूर बैठे हुए हैं या स्काइप पे हैं, तो इस तरह का हो रहा है। पर ये तो एक आपको अगले कुछ सालों के लिए और हमेशा के लिए एक चलन करना पड़ेगा कि आपको ये इस्तेमाल करना है, क्योंकि अभी तो हमको पता नहीं कि कब तक ये चलेगा। 1-2 साल तो चलेगा। बिल्कुल डॉक्टर डागा, बहुत महत्वपूर्ण बात। ये मास्क आपके लिए बेहद जरूरी है, सिर्फ आपके लिए नहीं है, जिससे आप मिल रहे हैं, जिससे आप बात कर रहे हैं, सामने वाले के लिए भी बहुत जरूरी है कि अगर खुदा न खास्ता आपके अंदर कोई इस तरह की वायरल इन्फेक्शन है वो किसी और की तरफ वो ना जाए। डॉक्टर रंजन, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे बच्चों को लेकर, खासकर जो एक्सपोजर हम जिस पर बात कर रहे थे डॉक्टर चौधरी, एक्सपोजर जो ज्यादा लैपटॉप्स पे, कंप्यूटर्स पे और जिस तरह से हो रहा है, बढ़ रहा है लॉकडाउन के थ्रू। देखिए, ये कोरोना या फिर कुछ समय पहले स्वाइन फ्लू, ये आएगा और आकर चला जाएगा। 6 महीने लगे, 1 साल लगे, लेकिन अच्छी आदत, अच्छी सेहत, अच्छी इम्यूनिटी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। इसके लिए आपको हर दिन मेहनत करना होगा और करते रहना होगा, ताकि जिस दिन इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़े, एक वैश्विक महामारी के बाद दूसरी वैश्विक महामारी अगर कभी आती है, तो उस दिन के लिए आपको हर दिन मेहनत करते रहना पड़ेगा।
जैसा कि सर ने बताया, अच्छी आदतें, चाहे वो प्रॉपर पोस्चरिंग हो, रेगुलर टाइम के बाद रेगुलर एक्सरसाइज हो, अच्छा भोजन हो, और जो आपकी बुरी आदतें जो कि कुछ लोगों में होती है, तंबाकू, सिगरेट या शराब, इन सबों से अपने आप को आप दूर रखें, तभी आप अपने आप को हमेशा के लिए स्वस्थ रख पाएंगे। जी बिल्कुल। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, लोकेश कौशिक हैं गाजियाबाद से। लोकेश जी स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। जी मेरा सवाल है कि मैं पिछले 30 साल से डायबिटिक और ब्लड प्रेशर की दवाइयां ले रहा हूं। पिछले 3 हफ्ते से ब्लड प्रेशर मेरा 100 और 60 ही रेंज में रहता है। दवाइयों का टाइट्रेशन किया है, अल्टीमेटली मुझे 2 हफ्ते से दवाइयां बंद करने के बाद मैं अभी भी लो साइड में रहता हूं। क्या किया जाए? This is not a question that's related to COVID-19, isn't it? चलिए, उन्होंने अपनी एक क्वेरी पूछी है। डॉक्टर चौधरी, अगर आप इसका जवाब देना चाहें। नहीं, अगर आपका ब्लड प्रेशर कम चल रहा है उसके बावजूद भी तो ठीक बात है, बट जहां तक मेरा अनुभव है कि एक बार किसी मरीज को हाइपरटेंशन हो जाए तो वो जिंदगी भर के लिए रहता है। तो डोज में कम ज्यादा की जा सकती है, लेकिन एकदम बंद करना शायद खतरे से खाली नहीं, कभी एकदम शूट कर सकता है। तो आप फ्रीक्वेंटली चेक कराते रहिए और मेरे ख्याल से लो डोज में आप उसको शुरू कर सकते हैं। Absolutely. So those are the precautions that you need to follow, and it is important to keep in mind that you need to follow social distancing, you need to follow hand hygiene and respiratory hygiene, and keep wearing face covers, especially when you're going out into public places or even to your workplaces. So that's it then in this edition of Doctor Speak, Jyotika. Yes, और हम अपने सभी डॉक्टर्स का पैनल पे बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। डॉक्टर डागा, आप हमारे साथ डिजिटली जुड़े, सोशल डिस्टेंसिंग को हमने प्रमोट किया है, बहुत शुक्रिया आपका। आपने अपना वक्त हमारे साथ बांटा। डॉक्टर चैटर्जी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी शुक्रिया। डॉक्टर पीयूष रंजन, डॉक्टर जयबशीष चौधरी, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने हमारे साथ बांटी और लोगों के सवाल लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आज के शो में बस इतना ही, लेकिन एक चीज याद रखिए मेरे ख्याल से मुनमुन की जान है तो जहान है। नमस्कार। नमस्कार। दुनिया में कई काम बड़े मुश्किल हैं, जैसे कि चंद मिनटों में चांद पर पहुंचना, टूथपेस्ट में पेस्ट को वापस डालना। और भैया एक काम है जो है बेहद आसान। अरे भाई, वही आधार कार्ड में अपना एड्रेस अपडेट करना। इसके लिए बस आपको UIDAI की वेबसाइट पे जाना है, अपना आधार नंबर डालकर OTP जनरेट करना है, फिर फॉर्म में OTP डालकर अपडेट एड्रेस कर कंफर्म करना है, और लो, हो गया आपका आधार में एड्रेस अपडेट। आप भी आधार अपना लो, फायदे में रहोगे। चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। दुनिया में कई काम बड़े मुश्किल हैं, जैसे कि चंद मिनटों में चांद पर पहुंचना, टूथपेस्ट में पेस्ट को वापस डालना।